I always tell people when they tell me ki, they're going through a bad phase. Yes, it is very difficult. It is very difficult to go through that bad phase. Obviously. But then after a while, you realize that it was just a phase. Right? Right. And I always believe that human heart and human mind is capable of so many things which we don't realize. I used to stammer a lot when I was growing up. Really? I used to stammer very bad. Okay. Till my ninth standard, 9th or 10th standard. इतना स्टैमर करता था, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया. मैं अपना नाम कुछ और बोलता था ताकि मैं अपना नाम वो स्टैमरिंग के बगैर बोल पाऊँ. Okay. घर का एड्रेस चेंज कर दिया मैंने, बिकॉज आई कुड नॉट से वेयर आई यूज टू स्टे. और फिर उसके बाद आई हैव इवन चेंज्ड माई पेरेंट्स नेम, बिकॉज मैं अपने डैड का नाम ही नहीं बोल पाता था, इतना स्टैमर करता था मैं. So radio is still relevant. इट विल नेवर गो आउट. Okay. पहले आप देखो, रेडियो आया, हमारे पास रेडियो आया, फिर उसके बाद टेप रिकॉर्डर आए. हाँ. लोगों ने कहा खत्म सा रेडियो, रेडियो स्टिल देयर. फिर टीवी आया, लोगों ने कहा कि क्या मकले हुए वहाँ कुछ बॉयज टीवी, रेडियो स्टिल देयर. देन योर CD players came in, रेडियो स्टिल देयर. देन पेन ड्राइव केम इन, Right. रेडियो स्टिल देयर. 2021 में सर्वे हुआ कि इंडिया में what was the source of authentic information regarding COVID? Radio came out to be the number one medium. Wow. So it will never go out. The internet culture, as I was last time we spoke on WhatsApp, I told you that we'll be discussing about the internet culture in Kashmir. So what is happening since जब से अभी हमारे पास अब इंटरनेट इतना हो चुका, abundance में अब आ चुका है, we are seeing like there is K-Twitter करके अब we have a place on Twitter. There is trends बना रहे हैं अब. There are trends that are being started by Kashmiri, people who are on social media in Kashmir. So what do you think about that change, and how is it going to change the demography of, like, how is it going to change the way we perceive information or news or current affairs? Information is always good. The more the merrier. अगर मैं अपनी बात बताऊँ आपको, I think मुझे लगता है कि as Kashmiris we are very up to date when it comes to internet. Right. We know everything about it. And as you can see, मैं देखता हूँ ना कि how strong opinions people have on internet. Right. And it's absolutely good to have strong opinions. It's absolutely good to. Yes, I am a firm believer of people having opinions. You can have your own opinion. I can have my own opinion. XYZ can have their own opinions. Having opinions is not always about disagreeing with someone. Okay. Right? I have my opinion does not mean that I am disagreeing with you. You have your own opinion. That is absolutely fine. That is entirely up to you कि आपकी अपनी opinion क्या है. But मेरी अगर अपनी opinion है, I want to put it across. And I think the space should be like that कि I should not be offended by what you are telling me or what I have posted or what your opinion is. मैं अपनी बात आपको बताऊंगा. There are times when I post something. Right? And people don't like it. So they put their opinions there on my post. I'm perfectly fine with it. Perfectly fine because I know कि everyone is a different individual. Everyone sees everything from her own perspective. जो कि उनका अपना perspective है. Obviously जब उनका अपना perspective है तो उनकी एक अपनी thinking भी होगी, उनका अपना bent of mind भी होगा, तो वो उसी हिसाब से उसको perceive कर रहे हैं. So मैं क्यों उनको बोलूँ कि जो आपने सोचा वो गलत है. ये मेरी opinion है, मैंने सामने रखी, आपकी opinion है, आपने सामने रखी, well taken. But इसमें एक चीज़ है, इसमें ये चीज़ है कि we should not get personal. Okay. Right? If you disagree with someone, that is absolutely fine. You cannot agree all the time. You cannot be saying कि हाँ चलो इसने post किया तो बहुत अच्छा है. There are 10 people who might like my post or whatever post they are reading. There are 20 who might not like it. So if they are reacting on your post, that does not mean कि आपका post खराब है. उनकी अपनी opinion है. उन्होंने वैसे ही react किया. But then once the barrier is breached where people unfortunately get personal, that should not happen. That should not happen. Criticism, opinions, and thinking of someone कोई कुछ भी सोच सकता है ना, वो एक दायरे में ही होनी चाहिए, जहाँ one should not get personal, one should not call names, one should not abuse. आप देखें कि
अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ पोस्ट कर देता है I तो agree. I agree. नीचे लोग लिख देते हैं जो उनका मन करता है, गालियां लिख देते हैं, That's actually why I brought this up, because Right? this is most common thing सो happening in. लोग गालियां लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं. ऐसे लोग हर जगह हैं, हर जगह ऐसे लोग हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने वो पढ़ा तो इट शुड इफेक्ट यू. आई ऑलवेज से कि लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग इट बी. द एक्सपीरियंसेस ऑलवेज मेक यू अ बेटर पर्सन, एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट टू बी क्रिटिसाइज्ड. Right. यू नो, हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे आप आज पॉडकास्ट कर, आपको लगता है कि आपका पॉडकास्ट जो है ये बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट है, बिकॉज यू हैव स्पेंड टाइम, यू हैव स्पेंड मनी, यू हैव स्पेंड एनर्जी, यू हैव कॉल्ड मी हियर. अब आप ये पोस्ट करोगे ना तो नीचे कोई लिख देगा क्या बकवास पॉडकास्ट है, राइट? ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा ना, बट दैट इज एन एक्सपीरियंस फॉर यू. Right. Maybe tomorrow you will try to better your podcast. Maybe tomorrow you'll have a better person on your podcast. Maybe tomorrow you'll have better conversations on your podcast. Maybe tomorrow you'll have people who have something better to offer to the listeners. So मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ देखो, सब कुछ पढ़ो and learn from it, absorb it. Maybe tomorrow अगर आपको लगता है कि आपने कुछ पोस्ट किया वो लोगों को नहीं पसंद आया, you might not want to post it again. You might think a majority of people did not like it, so let me post something else which people might like. और maybe अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है जो कि किसी और को पसंद नहीं आ रही है, चाहे उसका कोई भी मतलब हो, you might think about it कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ. So yeah, that's there. Criticism should always be taken in the right stride. Right. But then again, those who criticize should also understand ki to what length they are criticizing and how they are criticizing, right? मैं यहाँ पे बात आपको बताऊँ, it's a very important thing which I want to bring up here. That is body shaming. Unfortunately, you see कि अगर कोई बंदा अपनी पिक्चर पोस्ट करता है या कोई वीडियो पोस्ट करता है, उस पर बॉडी शैमिंग के कमेंट्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा. Now unfortunately, शायद बोलने वाला भी रियलाइज नहीं करता है कि जो वो बोल रहा है इट माइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पर्सन हु इज ही कमेंटिंग ऑन. राइट. सो कहीं ना कहीं वो पर्सनल हो जाते हैं उस मामले में. बहुत ज़्यादा. सो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है. बट देन मैं ये मानता हूँ कि सोशल स्पेस जो है इसका आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन ऑलवेज टेल. ये एक आपको एक लिबर्टी देता है लोगों को टू से वट एवर दे वॉन्ट टू, विच दे माइट नॉट से इन देयर नॉर्मल लाइफ. सो वहाँ पे वो बोल देते हैं. और यहाँ लोगों के पास वेंट भी कहाँ है कुछ कहने का. आप मुझे बताओ, मुझसे अगर कोई खफा हो जाता है ऑनलाइन, या मुझसे अगर कोई कुछ कहता है, या थोड़ा बहुत पर्सनल भी हो जाते हैं लोग कभी कभी, तो मुझे लोग कहते हैं कि भाई आपने इनको जवाब क्यों नहीं दिया. तो मैं ये कहता हूँ उनको कि मैं क्यों इनको जवाब दूँ, आप मुझे बताइए. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर इनको लगता है कि ये सही है तो बोलने दीजिए. बिकॉज यहाँ वो किसको जाके बोलेंगे फिर, कहाँ एक्सप्रेस करेंगे? सोशल स्पेस ही तो है जहाँ वो एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो मेरे सामने तो आके शायद ना बोलें, तो अगर सोशल स्पेस पे उनको लिबर्टी मिल रही है तो करें ना. सो दैट्स व्हाट इट इज. So there are a lot of things that I'm thinking on this, what you just said. Yeah. एक चीज़ तो ये कि पहले I used to think that हम लोग ऐसे, सबसे पहले I think that the people who have genuine criticism, who have genuine feedback, they are, मुझे लग रहा है they are not very, I'll say, bold or courageous to actually write it down. मतलब most people, like जो मेरे भी recent वाले जो podcast थे, I'm sure there were 100 problems in them, but I used to get 1 or 2 comments saying कि ये fix करा दो, ऐसा audio किसका होता है, ये करा दो. Completely, I used to reply with them, feedback taken, thank you, with an heart emoticon. ठीक है. But on the other hand, there used to be, I think, 4 or 5 comments who were saying something about the guest was there with me. Something like ये क्या इंग्लिश में बात करते हैं, इनको खुद कश्मीरी बोलने में शर्म आती है, थिंग्स लाइक दैट. और इवन बॉडी शेमिंग के मैंने इतने कमेंट्स अभी आज सुबह मैं डिलीट कर रहा था, 1-2 कमेंट्स मैंने आज सुबह. व्हाई आर यू डिलीटिंग कमेंट्स? मेरा ये मानना है कि कभी डिलीट कुछ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया से. इट शुड ऑलवेज बी देयर, बिकॉज मे बी व्हाइल यू रीड इट यू गेट टू रियलाइज कि हाउ इज योर ऑडियंस मे बी, राइट? और आपकी जो ऑडियंस है उसको आप बदल नहीं सकते हो, राइट? नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल द मूवी पठान. 2 मिनट के लिए कितना क्रिटिसाइज किया गया उस मूवी, बहुत, राइट? लेकिन फिर भी मूवी आई, चल गई, राइट? सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज व्हाई आई कोटेड दिस एग्जांपल इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो बैकलैश मूवी में मिला
पहले और जो अभी भी मिल रहा है, द मूवी इज डूइंग वेल. So your product, if it is good, it will always do good, no matter what people say. हम जब let's say for example हमें यहाँ से जम्मू जाना है और आप बाय रोड जा रहे हो जम्मू, राइट? आप गाड़ी निकालते हो, आपको बानीहाल तक स्मूथ रोड मिलता है, ठीक? राइट. उसके बाद जब आप टनल में घुसते हो, उसके बाद आपका रास्ता थोड़ा बहुत खराब हो जाता है. यू हैव अ बम्पी राइड देयर, राइट? उसके बाद जब आप थोड़ा आगे जाते हो, रास्ता फिर ठीक हो जाता है. देन देयर इज अ डिफिकल्ट टेरेन वेयर यू गो अप द माउंटेन, राइट? देन अगेन you go down, the road is smooth. That is exactly like your life. You don't get good things, you don't get appreciations, you don't get nice things on the platter. You have to work for them. जैसे आप अभी रोड में गाड़ी चला रहे हो, you are very careful. It's like your life, right? So expecting कि आपको अच्छा ही लोग बोलें, मुझे ये लगता है फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है. अगर आप obviously ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हमेशा ही लोग अच्छा बोलें या आपने जो लोगों के सामने रखा वो हमेशा ही अच्छा हो, देन अगेन एज आई सेड कि आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया भी मिलता अगर आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भले ही आप उस पर काम करें या ना करें, बट थोड़ी देर के लिए तो आप सोचते ही होंगे ना कि मुझसे क्या कहा गया है. और आप सबका मुंह थोड़ी बंद रख सकते हैं. जिसको जो बोलना है वो बोला और चला गया. लोगों को लगता है कि मैंने किसी को कुछ बोला सोशल मीडिया पे, so they are feeling emancipated with that. That is their thing. And how you are reacting to it, that is your thing. So learn the art of letting it be. People will always criticize you, right? Even if you do good, they will always criticize you. They will always be behind your back. You know, they will always say कि ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था. नून में नुक्ता निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं. लेकिन आप अपना काम अगर ऑनेस्टी से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, आप बॉग डाउन नहीं होंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं. जस्ट डू योर वर्क, अच्छे से काम करो अपना. देन आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन पीपल विल रियलाइज एंड थिंग्स विल वर्क फॉर यू. बट आई थिंक दैट इज यू हैव टू बी सो zen टू think like that. जैसा आपने बताया, it's not everyone's cup of tea to think like that, because I'll tell you how old are you? I'm about to turn 23. You're about to turn 23. When you will be 33, then you'll maybe realize, when you see this podcast at 33, then you will realize what I said. Okay. Because your life teaches you a lot. 10 years, माशाल्लाह, जब आप 33 के हो जाओगे, इन 10 सालों में आप बहुत कुछ देखोगे. Personally, professionally, socially, you'll see a lot of things, and life will change you in these 10 years. जैसे आप अभी हो, वैसे आप 10 साल के बाद नहीं होते. जैसा मैं कॉलेज में था, मैं जब अपने आप, जो मैंने छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ना, जो मैंने 10 या 15 साल पहले जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, या 2008 की बात कर रहा हूँ, जब हमें पता चला फेसबुक क्या है. एंड नाउ फेसबुक हैज़ दिस हैबिट ऑफ टेलिंग यू व्हाट यू पोस्टेड on this day that year. मैं जब अपने ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं जब अपने 5 साल या 10 साल पुरानी पोस्ट देखता हूँ ना फेसबुक पे, आई एम लाइक एग्जैक्टली, ये मैंने बोला है. It happens on WhatsApp. मैं ऐसे पुरानी कन्वर्सेशंस देखता हूँ कि यार ये मैंने बोला है, इज इट मी? एग्जैक्टली, रियली आई एम लाइक नहीं, ये मैंने पोस्ट नहीं किया होगा यार, मैं क्या. सो एज आई सेड, how I was 10 years back, I'm not that like that now. I have changed a lot. Life has changed me a lot, and it happens with everyone. There is only one constant in life, and that is change. You might have heard it. Change professionally, personally, emotionally. And we say कि life में change आया, चीज़ें खराब हो गई. Life में ये हुआ, चीज़ें खराब हो गई. Change in the terms of your profession, your career, your relationships. लेकिन everything makes you a better person. Every experience makes you a better person. You learn from it. Obviously ऐसा भी होता है ना कि आप कोई चीज़ चाहते हैं जो आपको नहीं मिलती है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, कहीं भी. लेकिन it all changes you at the end. फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, राइट? और फिर आप रियलाइज़ करते हैं आफ्टर अ टाइम कि
was that me? So I always tell people when they tell me ki, they're going through a bad phase, yes, it is very difficult. It is very difficult to go through that bad phase. Obviously. But then after a while you realize that it was just a phase. Right? And I always believe that human heart and human mind is capable of so many things which we don't realize. At a certain point we might want something very desperately. ठीक है ना? Say for example, मैं एक चीज़ बहुत desperately चाहता हूँ, बहुत desperately चाहता हूँ. फिर अगर मुझे वो चीज़ मिल गई, उसके बाद क्या? What do I do उसके बाद? Right? कोई और चीज़. ये चीज़ें चलती रहती हैं. कोई हर किसी के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं. So yeah. ओके. पहले तो आपने मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ याद दिला दी. तो मेरे पास फेसबुक पे मेमोरीज आती है और मेमोरीज 5 years ago ही वो. So what I do is I straight go there, delete. No, I don't delete them. I just keep them. Like they shouldn't be there on Facebook. No, I just keep them. I just keep them. I really like it. I keep them. I listen to them. मुझे अच्छा लगता है. ठीक है. And one more thing you said that people don't have a vent, where people don't have a place where they could go and vent out what is inside them, so they do it on social media. But don't you think there are some things which shouldn't be said, which are better if left unsaid? Like something which is when we are body shaming someone, or something which is maybe misogynistic or anything like that. So do we? But then again, I'm telling you, is the person who is doing that, does he realize, or does he or she realize? Unfortunately, body shaming हमारी culture में inbred है. Exactly. मतलब मैं अपनी बात बताऊंगा. जब मैं बड़ा हो रहा था, I had weight issues. मुझे लोग बोल देते, ओ मोटे तरह. So this was something where I realized कि जब मैं बड़ा हो रहा था ना, this was something where I realized कि ये ठीक नहीं है. Maybe मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया होता. Because मेरे अराउंड ये चीज़ें हो रही थी और वो चीज़ें मुझे बहुत नॉर्मल लग रही थी. आप समझ रहे हो मेरी बात? I used to stammer a lot when I was growing up. Really? I used to stammer very bad. Okay. Till my 9th standard, 9th or 10th standard. इतना स्टैमर करता था, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया. मैं अपना नाम कुछ और बोलता था ताकि मैं अपना नाम वो स्टैमरिंग के बगैर बोल पाऊँ. घर का एड्रेस चेंज कर दिया मैंने, बिकॉज आई कुड नॉट से वेयर आई यूज टू स्टे. और फिर उसके बाद आई हैव इवन चेंज्ड माई पेरेंट्स नेम, बिकॉज मैं अपने डैड का नाम ही नहीं बोल पाता था, इतना स्टैमर करता था मैं. और फिर उसके बाद ये मुझे दिमाग में चीज़ खाए रहती थी कि अगर अब मैं सही बोलूँ तो फिर उसके बाद क्या मैं वो बोल पाऊँगा, और अगर अब मैं गलत बोलूँ तो अगर मेरी चोरी पकड़ी गई फिर क्या होगा. नाउ कैन यू इमेजिन द कॉन्फ्लिक्ट इन माई माइंड. और इसको शायद उस वक्त कोई समझ ही नहीं पा रहा था. तब मुझे लोग बोलते थे, ओ हकले क्या हो गया तुझे, तू क्यों नहीं बोलता है. पीपल यूज्ड टू कम विद देयर थिंग्स कि नहीं पता है, ये करो, शीशे के सामने जाके बोलो, ऐसे करो, वो करो, ये करो, वो करो. बट देन इवेंचुअली आई केम ओवर इट. इट स्टिल हैपेंस, डू यू नो, इट स्टिल हैपेंस. मैंने रेडियो में एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब मैं बोलता था ना कुछ रेडियो पे, सो आई यूज्ड टू स्टार्ट समथिंग एंड आई यूज्ड टू से समथिंग, एंड देन अगर मेरा फंबल हो गया या मेरी कोई गलती हो गई, मैं कभी उसको एडिट नहीं करता था. हालांकि मेरे पास ऑल द वेज एंड मीन्स थे कि उसको मैं एडिट करूं, बट मैं एडिट नहीं करता था, बिकॉज मुझे लगता था कि दिस इज़ हु आई एम. Okay. Why should I change it? Why should I give something to my listeners where they think he's so perfect when I was not? So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये listeners के साथ एक connection भी मेरा बन गया अच्छा खासा. They realized कि नहीं, a radio jockey is someone who is absolutely like us. I used to crack jokes on myself. I used to crack jokes on a lot of things on radio. और बहुत मज़ा आता था मुझे. Yeah. That is one good thing actually. What I did was, I had same issues. I had weight issues always since my school days. So what I figured out after my 10th, क्योंकि तब तक थोड़ी सी अकल आ गई थी कि what I should do. I started making fun of, मतलब इससे पहले कोई सामने वाला कुछ बोल देता, I would myself like make a joke or something. That's a defense mechanism. Yes, I realized that's a defense mechanism. So what I would do, but say, then again example, I say, मैंने आपको कहा ना, as you said कि you have to achieve that zen. I don't know if I have achieved it or not, but now it really does not matter to me. It really does not. You know, ये लोगों को बहुत मुश्किल लगता है डाइजेस्ट करने में कि क्या यार इसको हम बोलते हैं, इसको फ़र्क ही नहीं. मुझे नहीं पड़ता फ़र्क, सीरियसली नहीं पड़ता. A lot of people who are, I have my close circle.
a lot of people who are around me, they tell me कि ये तुझे क्या बोल के चला गया, तूने इसको क्यों नहीं कुछ बोला. मैंने कहा बिकॉज इसकी गलती नहीं है या उसकी गलती नहीं है, मैं क्या इसको बोलूँगा, बिकॉज इसके लिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. आई होप एंड प्रे दैट द फॉलोइंग पर्सन और द सेड पर्सन लर्न्स इट not to do it. He should pick this up. That is not right to body shame anyone. It's not right to call names to anyone. और यहाँ रंग की अगर मैं बात करूँ, बॉडी की अगर मैं बात करूँ, छोटा हो, बड़ा हो, पतला हो, मोटा हो, सबके लिए है. ऐसा नहीं है कि if someone has weight issues तो उसी को body shame किया जाता है. This is everywhere. Whoever is different is treated as if they are not as human as we are. This is everywhere. And ये चेंज आपके और मेरे बोलने से 1 या 2 दिन में नहीं आएगा. One has to work for it. And I know कि thankfully the present generation they realize it. They do realize it. It's a very good thing. मैंने देखा है जब भी आप ट्विटर देखते हैं, जब भी कहीं ट्विटर पे डिस्कशंस हो रहे होते हैं, अगर किसी को बॉडी शेम कोई करता है ट्विटर पे, तो हमारे अपने लोग जो है ना वो बोलते हैं कि बॉडी शेमिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्यों कर रहे हो? Agreed. क्यों कर रहे हो? मेरे पोस्ट पे अगर मुझे किसी ने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, नीचे 4-5 लोग बोल देते हैं कि वन शुड नॉट बॉडी शेम, वन शुड नॉट गेट पर्सनल. सो सीख रहे हैं लोग, पता चल रहा है लोगों को. Completely agree. So it's completely okay to criticize one if अगर उनका काम सही नहीं है, or if they should maybe become better, but it's not acceptable if they are for the criticizing them for the way they look. That's not absolutely that's not acceptable. That is one more thing I'll tell you. We grow up watching movies, we grow up watching TV, and TV पे भी हमने movies में ऐसा देखा है, like अब गोलमाल आपने देखी होगी movie. The funny element of that movie is that there's a guy who cannot speak. तुषार कपूर. Right, so this is what we are, मतलब ये देख के हम बड़े हो रहे हैं कि अगर कोई बोल नहीं सकता, that's a funny thing. ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप ही ये डायरेक्टर को आइडिया थोड़ी आ गया कि मैं तुषार कपूर को ऐसा कैरेक्टर बना रहा हूँ, या राइटर को. उसने भी तो सोसाइटी से ही देखा होगा ना, सोसाइटी से तो पिक किया होगा ना. नाउ फिल्म जब शुरू होती है उस पर लिखा होता है कि एवरी कैरेक्टर इज फिक्टिशियस, बेयर्स नो रिजेम्बलेंस टू लिविंग और डेड. बट देन कहीं ना कहीं आपकी जो फिल्में बनती है ना, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग देयर. दे पिक इट अप फ्रॉम देयर. ऑब्वियसली आई डोंट नो, बट ये जो तुषार कपूर के कैरेक्टर की आपने बात की, देयर माइट बी समवन हु वुड बी लाइक दैट, यू नो. और कहीं ना कहीं आप उसको कैसे दिखा रहे हैं, किस लाइट में दिखा रहे हैं, दैट इज एंटायरली अप टू द डायरेक्टर. और अनफॉर्चुनेटली आजकल जो आपकी कॉमेडी चल रही है ना, दैट इज वेरी क्रिंज. Obviously. क्रिंज इन द सेंस कि वही चलता है जहाँ लोगों का मजाक उड़ रहा होता है, या वही चलता है जहाँ लोग खुद अपना मजाक उड़ा रहे होते हैं, या वही चलता. अच्छा, एक कंटेंट क्रिएटर है जो कि पैसा स्पेंड करके गुलमर्ग जा रहा है, बहुत खूबसूरत विजुअल्स ले रहा है और दिखा रहा है लोगों को कि गुलमर्ग कितना खूबसूरत है. ही इज़ यूजिंग अ ड्रोन, ही इज़ यूजिंग एन एक्सपेंसिव कैमरा, ही इज शोइंग अस थिंग्स विच वी हैव नॉट सीन फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, द क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव से. वहाँ से दूसरा कंटेंट क्रिएटर आपके पास आएगा, वो कपड़े उतार के डांस करेगा, ही विल हैव मोर हिट्स. Completely agree. Right. So this is a very tricky thing, and as a content consumer, हम content consumers ही है ना, कि हम क्या content देखें. As content consumers, one needs to know कि आप कैसा content देखें, आप कैसा content like करें, और आप कैसा content चाहते हैं आपकी फीड पे आए. इंस्टाग्राम आजकल वो एल्गोरिदम्स पे चलता है ना. Exactly. आप एक रील देखते हो तो वो आपको वैसी रील बार-बार दिखाता है, उसी से रिलेटेड. सो इट इज अप टू अस, वी हैव टू सेट दैट एल्गोरिथम हियर कि हम क्या देखना चाहते हैं. सो दैट इज एक्चुअली, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट, बट आई विल यूज द वर्ड स्कैरी. इट्स एक्चुअली स्कैरी थिंग कि अगर मेरे ऑलरेडी देयर इज अ सेट ऑफ, जो मेरे एक ऑलरेडी एक माइंडसेट बना हुआ है, इंस्टाग्राम मुझे बार बार वही देखे, उसी को और ज्यादा एनफोर्स करेगा. चेंज करो ना उसको. वही मैं कह रहा हूँ, देखो ना अच्छी चीजें देखो, तो इंस्टाग्राम आपको अच्छी चीजें ही दिखाएगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. द जो आई वाज फैसिनेटेड बाय कैट्स, रियली. आई यूज्ड टू वॉच कैट वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम. फिर मैंने इतनी बिल्लियां देखी ना इंस्टाग्राम पे, मुझे फिर आई वाज लाइक कि यार मुझे बिल्लियों से प्यार हो गया. सीरियसली, आई सॉ वन कैट वीडियो, देन आई स्क्रॉल्ड अप, देयर वाज अनदर वन, there was another one, there was another one, there was another one. I realized that 1.5 hour I was not doing anything, I was just lazing around at my home. 1.5 घंटा मैंने सिर्फ बिल्लियां ही देखी. So it's not harmful for anyone. No, it's not.
मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि किस तरीके से एल्गोरिदम पिक कर लिया। राइट। फिर अभी भी अगर मैं खोलूँ इंस्टाग्राम में अपनी फीड पे जाऊँ, वहाँ 3-4 वीडियोस बिल्लियों के ही होंगे। सो yeah, it depends entirely up to you कि आप क्या देख रहे हो। Right. So I mean, like now if there are people who are watching, as you said, the cringe content. Yeah. So Instagram will make sure that they keep watching it. Obviously. That they don't find good quality content. Obviously. And it's a very important thing for parents to realize. जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल विंटर वेकेशंस चल रही हैं, बच्चे घर पे हैं, पेरेंट्स फोन दे देते हैं बच्चों को। Right. बच्चों को सब पता है। बच्चे जाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे बच्चे बोलते हैं हम शॉर्ट्स देखेंगे, एंड यू रियलाइज जब वो एक देखते हैं तो दूसरा भी उसी किस्म का आता है, तीसरा भी इसी किस्म का आ जाता है। सो एज पेरेंट्स टू रियलाइज कि उनका बच्चा जो है वो क्या देख रहा है फोन में। और मुझे लगता है कि आप देखो कि सबका इस वजह से अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है, बहुत ज़्यादा। राइट। मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। पुरानी फिल्मों के जो गाने हुआ करते थे वो 4 मिनट के, 5 मिनट के, 6 मिनट के हुआ करते थे। फिर एक दौर ऐसा आया जब गाने रेडियो एडिट्स में आ गए, 3-3.5 मिनट के। अभी आपका गाना 2.5 मिनट का होता है, और कितना ही लंबा होता है गाना आपका, 2.5 मिनट का शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। उस 2.5 मिनट में भी आपका 1 मिनट म्यूजिक चलता है, फिर 1.5 मिनट का आपका गाना है। वो 1.5 मिनट लोगों का अटेंशन स्पैन है, और ये कम होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली। और आप अगर हम बोलते हैं ना शुर छिन मानोनी आजकल तिम छ रजील गमित तिम छ एक जाय बहवनी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बच्चों का ट्रेट है, बच्चे नहीं बैठते एक जगह। लेकिन आर वी फ्यूलिंग दिस बाय गिविंग देम द मोबाइल फोन वेयर दे सी थिंग्स व्हिच डोंट लास्ट, व्हिच हैव नो टाइम, व्हिच हैव नो, उनको ऐसा लग रहा है कि 2.5 मिनट या 1 मिनट या 50 सेकंड के लिए अगर वो देखें तो वो डोपामिन का रश वो 50 मिनट के लिए, 50 सेकंड के लिए ही मिले। एज पेरेंट्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। राइट। वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का वो में आ जाता है कि उनको चाहिए ही चाहिए। देयर इज दिस सोशल मीडिया, हम बात करते हैं ना कि किस तरीके से देयर शुड बी कंट्रोल ऑन ड्रग्स, देयर शुड बी कंट्रोल ऑन एवरीथिंग व्हिच इज एडिक्टिव, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। कंप्लीटली एग्री। कोविड में क्या हुआ कि कुछ करने को नहीं था, सो आई यूज्ड टू बी ऑन फोन बिकॉज सारा काम हमारा, ऑफिस नहीं जा रहे थे हम, सारा काम हमारा ऑफिस से हो रहा था। वन फाइन डे आई रियलाइज दैट आई वाज 18 आवर्स ऑन फोन, स्क्रीन टाइम मेरा 18 घंटे। देन आई थॉट कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। और ये 18 घंटे एक दिन नहीं हुआ, दिस वाज अ पैटर्न व्हिच वाज अनफॉर्चुनेटली हैपनिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मैं कर क्या रहा था 18 घंटे फ़ोन पे? आई वाज जस्ट बाइंग टाइम, काट रहा था वक्त कि यहाँ से जा रहा हूँ, वहाँ से जा रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कोई वीडियो देख लिया, कभी कोई वीडियो देख लिया, कभी कहीं से कोई कंटेंट निकाल लिया, कभी कल के कंटेंट की चीज़ हमने स्टार्ट कर ली। काम ही कर रहा था, बट 18 घंटे कर रहा था। नॉर्मली अगर ऑफिस में होता तो 8 घंटे करता, यहाँ मैं 10 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा था, और मैं रियलाइज़ भी नहीं कर रहा था। एंड आई थॉट कि नहीं, बहुत हो गया भाई, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, आई नीड टू टेक अ ब्रेक। एंड देन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई वर्क इन 2021, एंड मैंने सोचा था कि 1 साल की ब्रेक मैं लूँगा, तब से लेकर अभी तक ब्रेक पे ही हूँ। बट लोगों ने ब्रेक पे रहने नहीं दिया। एंड वी डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑल्सो, वी क्रिएटिंग समथिंग, और काम भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि ये जो चीज़ आपके हाथ में है, ये आपको, इट डज नॉट लेट यू रेस्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने कोई ऐसी चीज़ की तो मुझे इसकी लत छूट गई। आई हैव रियलाइज्ड इट्स एन एडिक्शन इन माई लाइफ, आई हैव रियलाइज्ड, बट हाउ विल आई काउंटर इट? It's entirely up to me. I'm trying. But it is hard. Like there are absolutely it is $1 billion companies who are trying to get you addicted to it. And absolutely it is hard. It is very hard. अब देखिए, आपका फोन कहीं जाता है, आपको एंजाइटी हो जाती है, फोन कहाँ चला गया। मेरे साथ अक्सर होता है ना, आई कम आउट ऑफ द शॉवर एंड आई एम लाइक, मेरे फोन कहाँ रख दिया, फोन कहाँ गया। अच्छा, सुबह जब गाड़ी में बैठने जाते हैं, कोई काम करने का पहला काम हम करते हैं फोन का फोन, राइट। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यू सिटिंग आइडल
not doing anything, not even on your phone. You have a habit of checking your phone like this, कहीं कुछ आया तो नहीं. मैंने क्या किया है, मैंने अपने फ़ोन में सारी नोटिफिकेशन ऑफ की हुई हैं. Okay. चाहे वो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन हो, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, इवन माई emails. I have closed every notification on my phone. Okay. So my phone does not buzz. So it has helped me in cutting down my screen time considerably, but not as much as I want to. But मुझे अगर WhatsApp में जाना है तो मुझे WhatsApp में जाना है, खोलना है और मुझे देखना है कि मुझे किसी ने क्या लिखा है. ठीक है, उस नोटिफिकेशंस मेरे फ़ोन पे फ्लैश नहीं हो रही है. इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस मेरे फ़ोन पे फ्लैश नहीं हो रही है. फेसबुक की नोटिफिकेशंस मेरे फ़ोन पे फ्लैश नहीं हो रही. सो व्हाट इट डज, आई वाज सो हैप्पी द अदर डे समवन टोल्ड मी कि यार तो ऑनलाइन ही नहीं होता. Okay. Because I am not. It feels like a compliment. Yes, Okay. because I am not online on WhatsApp and I like it. Because मैंने एक छोटी सी कोशिश की. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं it is bringing me some fruit. और कभी कभी मुझे परसों एक ने बोला कि मैंने मैसेज किया था तुझे, तूने देखा ही नहीं. एंड इट वॉज ट्रू. वो मैसेज जब आप थोड़ी देर आपने व्हाट्सएप नहीं चेक किया, इतने नाउ दैट विद माई प्रोफेशन आई एम एडेड इनटू अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, उनकी मैसेजेस आती रहती हैं. सो पुरानी मैसेजेस नीचे 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 चली जाती हैं, नई आ रही होती हैं. तो मैंने नहीं देखा था, सो आई हैड टू अपोलोजाइज. सो आई थिंक इट वॉज अ गुड थिंग. बट देन ये भी है ना कि इसके बगैर आप काम ही नहीं कर सकते. तो आप कैसे अपना वक्त जो है वो आप डिवाइड करें अपनी फैमिली के साथ, अपने आप के साथ, या अपने फ़ोन के साथ, अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ. दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट. यू नो, शाम को जब मैं इंस्टाग्राम पे होता हूँ ना, या आप कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या आपको किसी ने कुछ मैसेज किया होता है, या आप किसी का कंटेंट देख रहे होते हैं, फिर जब आप मैसेज बॉक्स में जाते हैं, देयर आई सी अ स्ट्रिंग ऑफ ब्लू लाइट्स दैट एवरीवन इज ऑनलाइन. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनलाइन. 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, और फिर एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, तो सोया क्यों नहीं है, नींद क्यों नहीं आ रही तुझे, शांग में. वो खुद जागा हुआ है, आपको मैसेज करता है क्या है, क्या नींद क्यों नहीं आ रही. सो कहीं ना कहीं वी नीड टू, बट एज आई सेड, टू ईच हिज ओन. सब लोग कोशिश करेंगे अपनी अपनी जगह पे, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है. एक और चीज़ हम लाइक टुडे वी हेयर इट अ लॉट के आज वक्त का पता नहीं लगता, 1 साल निकल गया पता ही नहीं लग गया. सो आई थिंक दिस ऑल्सो हैज समथिंग टू डू विद इट कि अटेंशन इतना हमारा इस चीज़ में चला जाता है, कभी उस पर ध्यान ही नहीं गया कि 1 साल निकल मुझे परसों किसी ने बोला 2023 आ गया. बिलीव मी, 2023, वी आर इन 2023. Yes. मगर मैंने उसको बोला मैं मेंटली अभी भी 2017, 2018 और 2019 में हूँ. मैं अभी 19 में हूँ. हाँ, मतलब आई हैवंट कम आउट बिकॉज उसके बाद वी नो व्हाट हैपेंड. और उसके बाद कोविड हो गया. फिर उसके बाद हम कोविड के बाद भी घर पे ही बैठे थे. और फिर यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट जोन. और अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपने जब उनको डेट लिखनी होती है ना, कोई 2021 लिखता है, कोई 2022 लिखता है. मुझे लगता है कि 2023 तो आ गया. पीपल विल टेक 4 months टू राइट 2023, बट एवरीवन विल राइट टू. एंड जनवरी भी खत्म हो गया. हाँ, Do you realize we are in the it's Feb, second month of the year, और इस महीने के भी दिन कम है. Exactly. I am looking at March. मुझे मार्च की एंजाइटी अभी से हो रही है कि मार्च आ जाएगा, सब कुछ खुलेगा, स्कूल्स खुलेंगे, बच्चों को स्कूल जाना है, फिर उसके बाद अभी एग्जाम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं. Then I am staring at Eid. फिर उसके बाद ईद आएगी, फिर उसके बाद बड़ी ईद आएगी, बड़ी ईद के बाद then we have to attend some marriages. फिर उसके बाद फिर उसके बाद विंटर्स आ जाएंगे, फिर 2024 आएगा. एंड बिलीव मी, आई एम सेइंग दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम सेइंग दिस विल हैपन लाइक दिस. Obviously it does happen like that. कल की बात है एक्चुअली. सो मसरूर भाई वाज टेलिंग मी कि आप फास्ट बीटल का पॉडकास्ट आप कर रहे होते, शार्क टैंक. मैंने कहा नहीं करो अभी, उसमें काफ़ी टाइम है. कह रहे फेब में करेंगे. देन आई रियलाइज एक मिनट, फेब 3 दिन में है. मेरे माइंड में था कि फेब तो हाँ अभी तो टाइम है फेब का. अच्छा, अब माशाल्लाह फ्राइडे को जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो you realize कि रात ही उस जुमा. Exactly. Right? It is really happening. It is happening. It is in front of us. And आज संडे है ना, मुझे लगता है कि आपने मुझसे 5 दिन पहले कांटेक्ट किया था मेरे को. हाँ. I was like, पता ही नहीं चला. पता ही नहीं. अच्छा, it was Javed had
come to your podcast. Right. I saw his podcast. It was wonderful. Javed is one guy who inspires me a lot. Exactly. He does some amazing things in his life. और कैसे जावेद ने, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, जावेद ने इसको क्रैक किया है. Mastered the game. जावेद has cracked the social media game. मैं उसको बोलता रहता हूँ ना कि तू बोलता है यार यही है जो है, यही है, इसी से इसने सब कुछ किया है. खैर उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि you wanted to contact, and then मैं कल जावेद से बात कर रहा था एक्चुअली शाम को. फिर मैंने रियलाइज किया आप नहीं साथ की, उसमें भी 15 दिन हो गए. When he told me when he was on your show. When was he on your show? I think it has been more than 15 days. See, so पता ही नहीं चलता यार टाइम का, नहीं पता चलता. Right. पहले तो I want to know, do you have a cat? No, I don't have a cat. I used to love stray cats. I had a lot of stray cats which used to come and used to feed them. तो एक के साथ बॉन्डिंग ज़रा बहुत हो गई थी अच्छी खासी. तो वो आती थी, बैठती थी हमारे साथ. शी वुड क्लाइम अप ऑन माई लैप, शी वुड सिट एंड वी पेट दैट कैट. फिर उसके बाद वो आई ही नहीं. सो शायद उसको किसी और का घर पसंद आ गया, या काफ़ी वक्त हो गया है कि आई हैवंट सीन दैट कैट. I can relate that. बहुत साथ मेरे साथ बहुत बार हुआ है. मुझे बहुत अजीब अब लगता है ना कि मैं परसों अपनी माँ को बोल रहा था कुछ दिन पहले कि आपको पता है आप उसको बोलते थे कोत आयक्स वंशी दोजोन हुई. मैंने कहा उसको अच्छा नहीं लगा है, उसने रियलाइज किया कि आई एम नॉट वेलकम्ड हियर, अब वो नहीं आती है. सो या सेम बचपन से देयर हैव बीन सीरीज ऑफ cats. I used to have a lot of pets when I was growing up. Like we always loved dogs. Okay. Right? तो कोई पेडिग्री कुत्ता नहीं था हमारे पास कि कोई बाजार से खरीद के कोई अच्छी ब्रीड का पेडिग्री कुत्ता. हमारे पास जो भी थे वो सड़क से ही उठाए थे हमने. आए थे. उनको प्यार करके हमने घर पे रखा हुआ था रखवाली के लिए. फिर उनसे you get once you have a pet it's so और जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना, इमेजिन करें कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं आप पे सब हुक्म चला रहे होते हैं, वहाँ जाओ यहाँ जाओ ये करो वो करो. एंड व्हेन यू आर यंगेस्ट इन द फैमिली ये तो ज़्यादा ही होता है आपके साथ ना. इमेजिन करो व्हेन यू आर द यंगेस्ट यू फील कि सब आप पे हुक्म चला रहे हैं. देयर यू हैव अ पेट जिसको आप कुछ भी बोलते हो कुछ भी करता है आपके लिए. राइट. सो हमारे पास था, हम उसको बॉल फेंकते थे वो बॉल वापस लाता था. यूज्ड टू बी यार इसको ये समझ कैसे आता है ये उठा के बॉल वापस लानी है. राइट. फिर वो आपके साथ होता था, वो दूसरे स्ट्रे एनिमल्स को अगर देखता था वो भौंकता था आपको बचाने के लिए. देयर वाज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आल्सो. शाम को रात को वो भौंकता था. हाँ. किसी को आने नहीं देता था. ठीक. तो वी यूज्ड टू काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू दैट कि यू हैव अ पेट जिसको आपने रखवाली के लिए रखा हुआ. सो या यही थी. अनफॉर्चुनेटली द डॉग वाज ही गॉट इनटू अ फाइट विद मोहल्ले के डॉग्स. उनको लगता था कि इसको VIP ट्रीटमेंट मिलता है, आज हम इसको सबक सिखाएंगे. हाँ. तो वो हमारे घर पे होता था लेकिन गेट पे होता था, तो वो अंदर भी आ जाता था. तो ही वॉज अटैक्ड बाय स्ट्रे डॉग्स इन द विसिनिटी एंड अनफॉर्चुनेटली वी ट्राई टू टेक हिम टू अ वेट ऑल्सो, लेकिन बच नहीं पाया. फिर ही डाइड. उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार अब मुश्किल हो जाता है पेट रखना. और फिर घर में माँ को हमेशा इस चीज़ से इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों. हाँ, Seriously, मुझे नहीं पता क्यों. लेट्स नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द हाउस, लेट्स नॉट गेट इट. हाँ. और फिर बट मैं सुबह सुबह जब निकलता हूँ ये कांद्रुस निश गसान ोट आने तक हून तत प्यारा लुक इन तिम त्रावन ोट. एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि मैं कांद्रू के पास जाता हूँ, कभी मैं 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा ले लेता हूँ या 3 तो उन कुत्तों को हम फीड करते हैं, कर देते हैं. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्ट्रे डॉग्स को लेके काफ़ी इशू भी है. बहुत इशू है स्ट्रे डॉग्स को लेके, कहीं भी आप देखें. एंड इट इज़ वैलिड. आई थिंक it is in a way it is valid. I agree. I totally agree. But then मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने नोटिस किया है कि ये जो जानवर है ना ये आपको छेड़ेंगे नहीं अगर आप इनको नहीं छेड़ेंगे सीरियसली. सो मैं जब सुबह जब मैं गेट खोलता हूँ ना उसकी आवाज़ से ही वो 4-5 कुत्ते जो है ना जिनको मैं ही नहीं वहाँ रोटी डालता हूँ, बहुत सारे, वो पूरा मोहल्ला ही फीड करता है. वो गेट की आवाज़ सुन के उनके कान खड़े हो जाते हैं. वो आते हैं फिर दौड़ते दौड़ते एक्सपेक्ट ये अभी कुछ देगा हमें. सो ये फिर मोहल्ले वाले ही कहते हैं कि मोहल्ला में शिकुमित रात दिमाग शंग नहीं. देन वही लोग जो हैं वो फिर कुत्ते को सुबह रोटी डालते हैं. आज से खराब से करा काम से तरह सुबह शाम को दोपहर में वही
कुत्तों को अब्यूज कर रहे होते कर रहे हैं, होते हैं। सुबह वही कुत्तों को Right. ढूंढ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं वी हैव टू फीड दैट डॉग. So it's a strange situation here. It is a strange Yeah. situation. So right now I have a cat. So it was a stray cat. तो लेकिन मुझे हमेशा से था, whenever there was a stray cat I used to feed them. तो फिर वो रुक जाते थे. So there have been a series of cats. मेरे बचपन से आते थे, कुछ महीने, कुछ तो 1-2 साल भी. After that कहाँ गए किसी को पता नहीं ही पता. तो भी right now there is one. We are calling him Joy. Very Joy nice. Lobo. Animals bring a lot of joy. I understand. Yeah. So I somehow always wanted to have a horse. okay. मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास एक घोड़ा हो. These days I'm trying to educate myself with a lot of history, with a lot of world history, with a lot of things which are happening around, with a lot of local history also. So this was something I missed on जब मैं काम कर रहा था, because time नहीं मिल पाता था. So आजकल I find small sources on the internet where I read, Okay. where I see. To be very honest, let me tell you that I was not into reading that much, but then I picked it up gradually. तो उसके बाद you get a lot of good content these days from podcasts, Right. from social media, from other sources. So जहाँ मुझे मौका मिलता है तो I tend to read a lot. Okay. What is the most interesting thing that you remember from the history or So anything? right now I'm studying about World War, right? 1 or 2? World War II right Okay. now, and I'm studying that how the German forces did what they did and उनका डाउनफॉल कैसे आया, फिर किस तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई, और किस तरीके से डिसीव भी किया गया लोगों को, और इसके साथ साथ किस तरीके से एक अलग बिजनेस मॉड्यूल भी चल रहा था वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज वॉर वाज helping a lot of people mint money also. It was a business attraction for a lot of big business houses at that time. And it will always be. So you जब आप ये चीज़ें देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपका एक नज़रिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बदल जाता है. तो yeah, that is what it is. Okay, perfect. How you say, you would see a war movie from the perspective of a director, जैसे उसने बनाई है और जो वो स्टोरी दिखाना चाहता है. फिर जब आप उस सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं, then आपको पता चलता है कि नहीं यार ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये क्या दिखा दिया. Right. So, yeah. Do you watch have you watched any war movie recently? Yeah, I have. Since everyone is on Netflix, Netflix पे you have a lot of things जहाँ आप देख सकते हैं. But मुझे एक वॉर मूवी टॉम हैंक्स की अच्छी लगती है, सेविंग प्राइवेट रायन. सेविंग प्राइवेट रायन. Okay. I like it. And डंकर्क है, डनकर्क, how do they pronounce it, वो मुझे अच्छी लगती है. Okay. और बाकी भी बहुत सारी हैं. You see them and you get वो एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस आपको मिलती है इन वॉर मूवीज में. Give me some Netflix recommendations. 1917 करके शायद एक मूवी है. 1917 I think it's a war movie. I saw that movie. Then उसमें एक शॉट है जहाँ there's bombardment happening and this hero is supposed to run through a field. Okay. With all the soldiers who are running. उसके बाद वो सीन इतना इंटेंस है ना कि वो जो सोल्जर भाग रहा होता है तो वो बहुत सारे दूसरे सोल्जर से टकराता है और गिर जाता है. ठीक. जब वो गिर जाता है ही कीप्स ऑन रनिंग. बट डायरेक्टर ने कभी कट बोला ही नहीं कि जब वो गिर रहा था. Okay. क्योंकि दैट सीन वाज सो एक्सपेंसिव, इट कुड नॉट हैव बीन शॉट अगेन. Oh. सो सीन के बाद हीरो वाज ऑल ब्रूज्ड अप. ही सेड कि मुझे टकरें लग रही थी, मैं गिर रहा था, तो आपने कट क्यों नहीं बोला. द डायरेक्टर सेड इट वाज टू एक्सपेंसिव टू कट. You should see this 19. अच्छा, वॉर मूवीज अगर आपको देखनी है, you should see World War in Color. Okay. On Netflix. It is something very nice. It has around 10 episodes. You'll really like it. Okay. Put yourself to it. And as I said, ये जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चक्कर चल रहा है आजकल, आप एक चीज देखोगे ना तो वो आपको खुद ही रेकमेंड करेगा कि आप ये देखो, आप ये देखो, आप ये देखो. Right. Yeah.
What else are you watching apart from this on Netflix particularly? Thankfully my life is not on Netflix, so just this बस और बस. कुछ नहीं. I watch, I observe a lot. और मुझे मेरे जो मेंटर है ना हुमायूं कैसर साहब, Okay. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में. Tell me something about that. If I am here sitting in front of you, if you have taken pains to call me here, I think कहीं ना कहीं इसमें हुमायूं सर का बहुत कंट्रीब्यूशन है. How? शायद मैं रेडियो में नहीं होता अगर मैं उनसे नहीं मिला होता, मैं कुछ और कर रहा होता. This was actually, I wanted to ask you this, like being an RJ at that point of time when it wasn't. I started my journey from doing all India radio shows. Western music वहाँ चला करता था. ठीक. तो Western music मैं रेडियो पे बहुत सुना करता था पहले. Okay. I was a big radio buff. हम जब हमको पढ़ाई के लिए जब बिठाया करते थे घर पे, तो हमारे पास एक छोटा वो ट्रांजिस्टर था, छोटा वाला, मेरे और मेरे भाई के पास. हम वो सुना करते थे. So my brother was obsessed with वो 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक कोई म्यूजिकल प्रोग्राम आता था, गाने सुनता था उस पर. तो कहीं ना कहीं I also got hooked up. तो my mother was traveling somewhere, so she told me तुम्हें क्या चाहिए. So I said मेरे लिए एक रेडियो लेके आना वहाँ से. Okay. So I was a very good radio buff. I used to listen everything on radio because चलता रहता था. और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी था. और मुझे लगता है कि रेडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था. There were presenters like जहांगीर साहब, अल्लाह जहांगीर साहब, हुमायूं कैसर साहब. You know, जब आप इनको रेडियो पे सुनते थे ना, बहुत अच्छा लगता था. और you used to think कि क्या हम कभी ऐसा कर पाएंगे. और जब मैं अमर सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं पढ़ता था तो हुमायूं कैसर साहब हमारे कॉलेज आए. उनको किसी फंक्शन के लिए बुलाया गया था. ठीक. सो दिस आई एम सेइंग कि मैंने हुमायूं कैसर साहब को हमेशा रेडियो पे सुना. मेरी एक इमेज थी हुमायूं कैसर साहब को लेके. ठीक है, ये कैसे दिखते होंगे. ठीक. जब मैंने हुमायूं कैसर साहब को देखा ना, मैं देखता ही रह गया उनको. आई वाज लाइक, ही इज हुमायूं कैसर साहब इन अ गुड वे. एंड ही वाज लाइक, मैं हुमायूं कैसर साहब को सोचता था कि ही विल बी समवन लार्जर देन लाइफ. यू नो, मैं जब उनको देखूंगा, इनने सूट पहना होगा, चश्मा होगा इनको, राइट. मतलब वो, बट ही टर्न्ड आउट टू बी टोटल अपोजिट ऑफ व्हाट आई हैड थॉट. हुमायूं सर शर्ट पहन के थे, जीन्स पहनी थी उन्होंने, वो रिस्ट बैंड पहना हुआ था उन्होंने, लंबे बाल थे उनके, पीछे ऐनक पहनी थी. आई वाज लाइक, क्या है क्या ये. मैंने देखा ना, मैंने हुमायूं सर को देखा. आई वाज लाइक, आई हैव टू मीट हिम, आई हैव टू टॉक टू हिम, बिकॉज इनको हमने हमेशा रेडियो पे सुना है. मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम. ही वाज लाइक, वालेकुम सलाम, ठीक हो. मुझे जानते नहीं थे, बट आई गॉट सो मेनी वार्म वाइब्स फ्रॉम हिम. तो मैंने कहा सर मैं रेडियो आना चाहता हूँ. ओके. ही डिड नॉट से कि क्या करते हो, क्यों आना है, कल आ जाना. आई वाज लाइक, इतना जल्दी कौन बोलता है. Okay. कल जा, मतलब अब मैं कल कैसे जाए. ही पुट मी इन अ फिक्स. आई वाज लाइक, कल आ जाना. कल क्या करने जाऊंगा मैं वाले. होता है ना कि अगर आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं, फिर आपको अचानक से मिल जाए, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. एग्जैक्टली. यू लाइक, कल आ जाना. आई वाज लाइक, ठीक है सर, मैं कल आऊंगा. ना मैंने उनसे पूछा मुझे आना कहाँ है, ना मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे वहाँ अंदर आने देंगे, ना मैंने उनसे कुछ पूछा. मैं सुबह तैयार हुआ, मुझे कॉलेज जाना था. मैंने कॉलेज में क्लास अटेंड की, 12 बज गए. मैं निकला, मैं वही मैंने बस पकड़ी. बस ने मुझे अब्दुल्ला ब्रिज के नीचे छोड़ा. मुझे पता थी रेडियो कश्मीर वहाँ है, बट मुझे पता नहीं थी अंदर कहाँ से जाता है. ठीक. फिर मैंने पता किया, या कापोरे शुगा सुन बोला, वहाँ पीछे से जाना है, ब्रिज के साइड से, यहाँ जीरो ब्रिज के साइड से. अब मैं गया, वहाँ खड़ा हो गया, वहाँ पुलिस वाले, हाँ कहाँ जा रहे हो. ठीक. मैंने कहा हुमायूं साहब से मिलना है. बुलाया है. मैंने कहा हाँ, उन्होंने कल बोला था, बट नाम तो है ही नहीं यहाँ, कैसे जाओगे. तो मैंने कहा बुलाया है उन्होंने. तो उसके साथ साथ आई सॉ लॉट ऑफ यंग पीपल आल्सो एंटरिंग. ओके. वो जा रहे थे. Which year is this? आई थिंक इट वाज 2007. Okay. 2006-7 समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो फाइनली मैं उनके कमरे में पहुंच गया. मैं जब उनके कमरे में घुसा, हुमायूं साहब का समझो फेसिंग ही दरवाज़ा खोलते ही उनका टेबल लगा था. तो कुर्सी पे बैठे थे, सामने टेबल था. यहाँ से कुछ 5-6 कुर्सियाँ लगी थी, यहाँ से कुछ 5-6 कुर्सियाँ लगी थी, सब फुल. वहाँ लड़के और लड़कियाँ बैठी हुई थी, यंग बॉयज एंड गर्ल्स. कैन यू इमेजिन द एनर्जी इन दैट रूम. और यंग बॉयज एंड गर्ल्स के साथ हुमायूं कैसर साहब डिस्कस कर रहे थे लाइफ.
लाइफ के बारे में बता रहे थे. Seriously? Yes, he was Okay. talking about life. He was talking about how to go about things in life, how to do things, how to be a better professional. मुझे ये अपनी जगह लगता है कि जिसने उस कमरे में बैठ के हुमायूं साहब के साथ टाइम स्पेंड किया, उन कुर्सियों पे बैठा, हुमायूं साहब की छत्र छाया में रहा, उनकी मेंटरशिप में रहा, वो कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूर पहुंच गया. Wow. It was not about Mhm. him teaching us something, just the time you spend with that man. It's just out of this world. And he was always open to everything. उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं हमको कि ये मत करो, वो मत करो. फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मैं भी एक शो का हिस्सा बनना चाहता हूँ. Okay. हिम्मत करके बोला 4-5 बार. जब मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा कि सर मैं एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए. उस लाइक हाँ ठीक है, परसों ट्यूसडे को यूथ पल्स आएगा, उसकी रिकॉर्डिंग में आ जाना. Mhm. गया मैं, कुछ टॉपिक था तो हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने सुना, तो मैंने उनको SMS किया Mhm. डरते डरते, सर डिड यू लाइक इट? तो उन्होंने कहा इट वाज गुड, यू वर गुड. Okay. तो यूथ पल्स किया. फिर उसके बाद अपना एक वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम मिला मुझे. Okay. अपने को होस्ट हुआ करते थे उसमें. Mhm. मेरी पहली को होस्ट शुमाइला थी. Mhm. शी वाज आल्सो देयर, शी इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड. Okay. फिर उसके बाद सैटरडे नाइट फ़ोन इन किया हमने प्रोग्राम, जहाँ लोग फ़ोन करते थे. फिर उसके बाद बाकी प्रोग्राम्स की. सो आई फेल इन लव विद रेडियो Okay. देयर. वहाँ शायद सब कॉन्शियसली मैंने डिसाइड कर लिया कि यही करना है अब लाइफ में. मौके तो बहुत मिले कुछ और भी करने के, लेकिन मुझे लगता था कि दिस इज़ माई कॉलिंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू. और फिर उसके बाद आई वेंट टू दिल्ली. आई डिड माई ग्रेजुएशन यहाँ से ख़त्म की, फिर दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया. Mhm. तो मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था, तो मेरे भाई, बड़े भाई मेरे साथ बैठे हुए थे. Mhm. तो बिग FM पे एक ऐड आ गया कि उनको एक रेडियो जॉकी चाहिए. Okay. ठीक है, मैंने सुना, आई पास्ड इट ऑफ, बिकॉज मैं दिल्ली से उन्हीं दिनों आया हुआ था नया नया. ठीक. और जब वो एक अच्छी जगह से कोई आता है ना ग्रेजुएशन करके, फिर उसको लगता है अब मैं कि यहीं काम करूँगा, मैं कहीं बाहर जाऊँगा काम करने, आई वांट टू मेक इट बिग फॉर माई सेल्फ. तो मुझे लगता था कि आई ऑलवेज थॉट कि मैं बाहर जाऊँगा Mhm. और कहीं किसी, आई थॉट कि आई वुड एंटर इनटू मे बी जर्नलिज्म, आई वुड एंटर इनटू जर्नलिज्म. Okay. तो मेरे भाई ने फिर दूसरे दिन मुझे कहा, तुझे पता है आज वो ऐड मैंने फिर सुना, तो तू जाता क्यों नहीं है? मैंने कहा ठीक है जाऊँगा. बनाया मैंने CV अपना सब कुछ किया. मेरा एक दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा नेबर, मोहसिन है उसका नाम. Okay. तो मोहसिन के पास बाइक हुआ करती थी उन दिनों. निकाली हमने मोहसिन की बाइक और हम गए करानगर छाणांशी बिग FM दफ्तर कच्छ. कहाँ ठीक. होना होते हैं, कहाँ होना ये तो मकसर बोलते. ठीक. तो को ठुक ठुक तो द्राव ये नफर तो हाँ क्या काम है. मैं बोला कि यहाँ मैंने सुना RJ के ऑडिशन होने वाले हैं, तो मुझे भी अप्लाई करना था. ठीक. बोला CV दे दो अपना. तो दे दिया CV. Mhm. इसमें एक और फ्रेंड है मेरा, उसका नाम सायर है, वो भी मेरे स्कूल फ्रेंड है. ठीक. तो ही वॉज ऑल्सो लाइक कि वहाँ वैकेंसी निकलने वाली है, यू शुड अप्लाई. You should apply. तो फिर उन दिनों शायद आई थिंक RJ सोफ़ी जो है, Mhm. शी इज़ अ ब्रिलियंट रेडियो जॉकी, ब्रिलियंट. RJ सोफ़ी जो है, उनको शायद चंडीगढ़ शिफ्ट करना था, Okay. तो उनकी वजह से यहाँ वैकेंसी हो गई. Vacancy थी. तो मैंने अप्लाई किया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया. देन देयर वर अ लॉट ऑफ राउंड्स आल्सो. फाइनली मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं था ना कि FM रेडियो कैसे काम करता है, क्या करता है. Mhm. आई थिंक RJ हया केम इन एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिकॉज Mhm. मैंने उनसे बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा. दो वी वर कलीग, शी वाज 1 year सीनियर टू मी, Mhm. but staying in that radio station for good 10 years, we worked together. She was always a mentor to me, Mhm. always. Mhm. और मुझे ये लगता है कि she is the best voice we have. अब तो नहीं Right. करती है वो RJ, नहीं. we had in whole of North India. ये मैं आपको मजाक के बगैर बता रहा हूँ. Mhm. मुझे लगता है कि वो नॉर्थ इंडिया की उस टाइम की बेस्ट रेडियो होस्ट थी, बिकॉज यही नॉर्थ ही बेल्ट हम जानते थे कि कौन कहाँ क्या कर रहा है. Mhm. शी वॉज so loving, so affectionate, she was so helping also.
इसके साथ मैंने अभी आपको कहा था, ऑफ बीट हम बात कर रहे थे कि you should always have good colleagues in your life. You should always maintain good relationships with your friends, your family, and your colleagues. I think I have been fortunate enough to meet good people in life, always, who have helped me in my career, who have helped me as a person, who have shaped me. So उनमें से एक बहुत बड़ा contribution आरजे हया का भी. Wow. Seriously. Because उनसे जब वो शो कर रही होती है, we would see her like this, wow, ये कर क्या रही है, ये कैसे करती है ये. उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता था हमें. जस्ट वही ना, बीइंग विद हर वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड देन समीन इज देयर राइट नाउ. आरजे समीन, राइट. समीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. वी आर बडीज. उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिला. उससे भी 3-4 चीज़ें सीखी. हाउ ही वर्क्स. ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मैन, वेरी डेडिकेटेड मैन. और मुझे लगता है कि यू नो आरजेस जितने भी हैं ना, सबसे डेडिकेटेड वही है अपने काम को लेके. ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. ही हैज हिज माइंड ऑन द राइट ट्रैक. आई रियली लाइक हाउ ही वर्क्स. और कभी कंप्लेन नहीं करता वो. होता है ना कि कभी वो प्रोफेशनल फटीग आ जाता है ना लोगों को, यार कहाँ फंस के क्या कर रहे हैं, थक गए. आई हैव नेवर हर्ड दैट फ्रॉम हिम. नेवर. ही इज दैट हॉर्स who is in the race with himself. He's running. Okay. Seriously, he's running. He's running. He knows कि उसकी मंजिल है. उसको पता है उसको कहाँ जाना है. He's not competing with anyone. He's running. And then current lot of RJs में RJ Wisdan बहुत अच्छे हैं. I really like his connect with people. I really like it. He has the vibe of the people. Obviously, he's. So I really like Wisdan. And then there is Rafiq also. हाँ. I really like Rafiq also. Rafiq is also amazing. There is Raees also. Raees is on a different level altogether. उसका humor बहुत अच्छा है. Exactly. Raees की भी nubs बहुत amazing है. And then there is Mehak also. RJ Mehak. She is different in her own ways. RJ Rafia is there. वो भी बहुत अच्छी है. Then there is RJ Mursal also. वो भी बहुत अच्छा है. उनका मैंने सब RJs जो हैं, सब में एक एक अपनी अपनी खासियत है. अक्सर हम सुनते हैं ना कि यार अब कंपटीशन है, वो आरजे से अच्छा है, वो आरजे से. अब तो मैं करता ही नहीं हूँ. आई कैन सेफली से दैट कि मैं इस रेस में नहीं हूँ. बट आई गेट टू लिसन टू इट अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है. मैं ये कहता हूँ कि सब में एक अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है जो कि दूसरे में नहीं है. एंड फॉर्चुनेटली दे नो दैट कि वो क्वालिटी उनमें क्या है. एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. दे आर ट्राइंग टू होन देयर स्किल्स. दे आर. जैसे रफ़ीक की बात करूं, रफ़ीक जो है वो मुझे लगता है वो एनर्जी का धमाका है. रफ़ीक कैन पुल ऑफ एनीथिंग. ओके. उसको मैं अगर बोलूँगा ना कि रफ़ीक एक काम करना, ही वुड नेवर से नो. ही वुड पुल ऑफ एनीथिंग. रफ़ीक को अगर 1,00,000 लोगों के बीच में भी आप खड़ा कर दो और बोलो कि भाई एक क्राउड कंट्रोल करो अपनी आरजेइंग से, ही विल डू दैट. ही कैन ईजिली डू दैट. सो ही इज़ जस्ट अमेजिंग. अच्छा, ये तो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक, जो आपके कोलीग्स हैं, जिनके साथ आपने काम किया. देन देयर आर पीपल हु आर एट द बैक एंड. राइट. मैं अगर बिग एफएम में काम कर रहा हूँ तो वो मुझे वो अपॉर्चुनिटी, मुझे वो सारी वो चीज़ें फैसिलिटेट करके कौन दे रहा है. हाँ. मेरा अगर कोई आइडिया है उसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ, वो मुझे कौन हेल्प कर रहा है. टीम एट द बैक एंड. यस, देयर इज दिस गाय कॉल्ड अबरार जरगर. ओके. यू डोंट हियर अ लॉट अबाउट हिम. ना. अबरार इज अ प्रोग्रामिंग हेड फॉर रेड एफएम राइट नाउ. ओके. अबरार हैज क्रैक्ड द रेडियो कोड. वो हम सब का बॉस है. ठीक. इस मामले में अगर आप उसको देखेंगे, इतना सा पतला सा है वो, लेकिन जो उसका काम करने का तरीका है ना, he just gets things done like this. He is just amazing. And he knows, he knows the pulse of the people. Okay. Yes. So Abrar, if you're watching right now, you're just amazing. और इतने सारे लोग हैं जो कि अब मैं सबका नाम अगर लूँ, दानिश भाई भी हैं. You know, I'm deliberately taking names here because it's very important to mention people who have helped you. I completely agree. Yes, दानिश भाई हैं, तजम्मुल हैं, सब हैं. तो दानिश भाई हमारे स्टेशन इंजीनियर हुआ करते थे रेड एफएम में, सॉरी बिग एफएम में. तो इनके साथ हमारा हमेशा 36 का आंकड़ा हुआ करता था. तो हम उनको बोलते, दानिश भाई सिस्टम नहीं चल रहा है, गाने नहीं लोड हो रहे हैं, इंटरनेट नहीं बैड चल रहा है, एसी बंद हो गया. ही यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद अस लिटरली. मैं आरजे मैराथन कर रहा था एक बार. डू यू नो अबाउट इट? No. You don't know about it? No, not much.
So I'm the only one in J&K who has done radio for 111 hours continuously. Continuously. Yes. 24/7. Yes. Oh. 111 hours 5 दिन किया था. तो 5 दिन मैंने दानिश भाई को टोज पे रखा. टोज लिटरली ऑन टोज कि दानिश भाई ये नहीं चल ये रहा. कब हुआ? ये कब हुआ? ये 2016 में हुआ था, जनवरी में. ठीक है, ठीक है. करना एक्चुअली समीन को था. समीन यहाँ नहीं था. समीन शादी पे गया था. उसको अभी भी इस चीज़ का रिग्रेट है ठीक कि मैंने नहीं किया, मैं शादी पे गया हुआ था. परसों मैंने कुछ पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे. समीन ने नीचे लिखा आई वाज आउट ऑफ टाउन. ओके. तो मैंने उसको लिखा यू स्टिल आर. गोवा में घूम रहा था उन दिनों. तो करना उसी को था बेसिकली, बट वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने कर लिया. आरजे हयानी का, शी कुड नॉट डू इट. पहले मुझे लगता था कि क्या करेंगे यार, मतलब 5 दिन आपको रेडियो पे रहना है, 5 दिन बात करनी है आपको, क्या बोलोगे आप. पॉइंट ये था कि आई वाज विद 92.7 बिग एफएम वर्किंग एट दैट टाइम एंड हमें 92.7 आवर्स ये करना था. ओके. 92.7 आवर्स. वो एक इंटरनेट देने वाली कंपनी थी, उन्होंने बिग एफएम के साथ ये टाई अप किया था कि जितने घंटे आप करेंगे उतना जीबी इंटरनेट हम एक अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल को गिफ्ट करेंगे फ्री में. सो वी पिच्ड इन. 30 रेडियो जॉकीज थे अक्रॉस इंडिया जो ये कर रहे थे. तो हमने जब व्हाट कुड यू स्पीक फॉर 92.7? आई एम टेलिंग यू. सॉरी. लोगों को ये लगता है कि मैंने 5 दिन बात की है, बट ब्रेक्स थी ना, गाने चल रहे थे बीच में, एड्स चल रहे थे. ठीक. तो पहले दिन बहुत एक्साइटमेंट थी, क्या करेंगे. अच्छा, काफ़ी मीडिया में भी फैन फेयर हो गया था कि नहीं भाई नासिर कर रहा है ये 111 घंटे या सॉरी 92.7 आवर्स. मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं, चलो बेस्ट ऑफ लक ये वो. जानी में उन्हीं पान में शुक्र दफ्तर में रात भी हुई तो सॉरी. अब हमने शुरू किया. आई थिंक 26 जनवरी को हमने ये शुरू किया सुबह 8 बजे. अब हम कर रहे हैं शोज, लोगों को बुला रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. ठीक. फिर 8 बजे के बाद इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या करेंगे 8 बजे के बाद? लाइक व्हाट इज द कंटेंट व्हिच यू विल गिव टू योर लिसनर्स? एग्जैक्टली. वो क्या सुनेंगे? इंटरव्यू तो सुन लिए उन्होंने, ग्रीवेंसेस भी सुन ली सारे दिनों, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, वो भी तो सुन लिया. कैंपेन्स भी हमने चला ली, ड्रग्स पे भी बात कर ली, सब कुछ किया. वी गॉट डॉक्टर्स आल्सो, हेल्थ पे भी बात कर ली. 8 बजे के बाद क्या करेंगे? इसी में गाना चल गया तो मैं बाहर गया, तो आई जस्ट ऑन द इंटरनेट लॉगिंग समथिंग. तो मैंने शेर व शायरी की एक किताब देख ली वहाँ पे. ओके. आई थॉट कि लेट्स आस्क पीपल टू डू शेर व शायरी शाम को. ठीक है. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ अवेलेबल वहीं था. मैं रैंडम शेर व शायरी की वेबसाइट पे गया. ठीक. 2-3 शेर मैंने बोले. उसके बाद मैंने बोला लोगों को आप अब मुझे शेर सुनाओ, मतलब कॉल करो और शेर सुनाओ. कश्मीर में सबका दिल टूटा हुआ. ठीक. लोग कर रहे हैं फोन, सुना रहे हैं शेर, फिर अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं. मैं बोलता हूँ अच्छा बताइए अब आप गाना कौन सा सुनेंगे. मुझे लगता है कि हमने कोई कसर, हमने गज़लें भी चलाई, हमने नुसरत फ़तेह अली खान भी चलाया, हमने लेटेस्ट गाने भी चलाए, हमने पुराने गाने भी. एंड इट वाज अ कार्निवल फॉर 5 days. मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार का तो लोग खाना ही लेके आए. एक हमारे लिसनर हैं, बारामूला में रहते हैं वो, आई थिंक हरविंदर जी उनका नाम है. ओके. हरविंदर जी सुबह मुझे मेरा गार्ड बोलता है कि एक सरदार जी आए हैं आपसे मिलने. तो मैंने कहा कौन सरदार जी, सुबह 7 बजे कौन आएगा? तो हरविंदर जी आ गए पराठे और दही लेके सुबह ब्रेकफास्ट के लिए. ठीक. इमेजिन वो बारामूला से निकले थे, उनको 6 बजे निकलना पड़ता शायद. ठीक. तो वो आए तो बैठे मेरे पास, हम खा रहे हैं. तो कहा कि आपने कल रेडियो पे बोला ना आप घर के पराठे मिस करते हैं. मेरी मिसेस सुन रही थी. वाह. फिर मैंने जब नब्ज पकड़ी मैंने बोला रेडियो पे, मैं कैसा वाजवान आ रहे लोग वाजवान लेके. सीरियसली आई स्वेयर पीपल केम विद वाजवान, पूरा फुल वाजवान. आई सेड कि केक होना चाहिए, लोग केक लेके आ रहे हैं. I said roasted chicken होना चाहिए, लोग roasted chicken लेके आ रहे हैं. I was dictating terms on radio to people. I was setting my menu. Okay. Seriously. फिर उसके बाद मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार का हमने खाना ही खाया होगा. मैंने क्या खाया, मेरे जो colleagues थे बाकी लोग. And during that time entry was open to everyone in the radio station. सब लोग आए. ठीक.
लोग अपने बच्चों को लेके आ गए दिखाने के लिए मुझे, देखो ये क्या कर रहा है, फेल्ट लाइक आई एम सम एग्जिबिट समवेयर वेयर पीपल आर, बट इट वाज सो अमेजिंग. मतलब मुझे लोग फ़ोन करते थे. एक बार मुझे फ़ोन आया, आई थिंक सोपोर से या बारामूला से कहीं फ़ोन आया रात को 2 या 3 बजे. ठीक. लिसनर का नाम तहसीन है. Okay. आई स्टिल रिमेंबर माई लिसनर्स. So Tehsin he's a specially abled boy, Okay. right? So he unfortunately cannot walk. He's on a wheelchair, but has amazing determination and grit in life. अभी भी हम बात करते रहते हैं, कभी कभी वो टेक्स्ट करता है मुझे. तो तहसीन कहता है कि जब से मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ मेरी दर्द गायब हो गई. That's a big thing to say. अच्छा, एक बार एक लिसनर आया, तो वो कुलगाम से आए थे. तो मुझे गार्ड कहता है कि सर इसको मिलना है आपसे. तो मैंने कहा बुलाओ ना अंदर. कहता है नहीं सर मैं अंदर नहीं आऊँगा. कहा कि ये बोल रहा है बाहर ही आइए. ठीक. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो अब मैं बाहर गया तो उसने मुझे कहा मैं चीज़ हाँ सी मैसेज नहीं आवर. मैंने कहा वाना जीती. एक हाथ उसका फैरन में था. ठीक. मैंने कहा वाना जीती क्या कन्यास वाला सी नेवर. मैं अंदर गया, उसने फैरन में से मुर्गा निकाला, जिंदा मुर्गा. ये चक्र. आई वाज लाइक इसका क्या करूँ मैं. नाज याजुनी में चक्र. रीजन वो कुलगाम से आए थे. अच्छा. तो जिंदा मुर्गा लेके आया था यार. याजुनी में अखरोट. अच्छा, एक लिसनर हमारा जुबैर है, ही इज आल्सो स्पेशली एबल्ड. वो मेरे लिए दूध लेके आ गया जब मैं मैराथन कर रहा था. गाय का दूध. बोला सर ये हमारी अपनी घर की गाय का. ना कैन यू इमेजिन उस बंदे ने. दीज स्मॉल थिंग्स यू फॉरगेट. यू कैन नॉट फॉरगेट कि कितनी मोहब्बत आपसे लोग करते हैं. तो उसने कहा कि मैंने आज सूमो बुक की. एक दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ आ, मुझे इससे मिलना है, मैं देख नहीं पाता तो मैं अकेले नहीं आ सकता था. ओके. तो ही केम, ही सॉ. ऐसे कितने इंसिडेंट्स. So I have actually a question. Actually, it's a two-part question, and you can choose to not answer if you want. With like current scenario, people have so many options like television, there's YouTube, there's everything. Do you think radio is still relevant? Absolutely. I am an out and out radio guy. And one more, I'll add to this question. Then I'll wait for your answer. One more thing, जो भी like you mentioned all these RJs, I know them primarily from social media and not from radio. That is my, this is something which I've already had a discussion with all these RJs, and I said since I'm teaching in DPS also, हमारा DPS रेडियो है वहाँ पे, मैं वहाँ बच्चों को ये पहली बात बोलता हूँ कि if you are radio broadcasters, if you are radio presenters, be known by your voice, not by your face, right? आजकल अनफॉर्चुनेटली है ना कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमारे ये भाई काम करते हैं और ये बहनें काम करती हैं हमारी, उन ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी एक रिक्वायरमेंट है. दे आर मैड आफ्टर डिजिटल नंबर्स. दे आर मैड आफ्टर हिट्स. इंस्टाग्राम पे कितनी हिट्स हैं, या आपके फॉलोअर्स कितने हैं, या आपने अगर वीडियो पोस्ट किया तो कितनी फ्रीक्वेंसी से आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. सो इन दैट रेस अनफॉर्चुनेटली दे आर गेटिंग कॉट अप, एंड आई नो देम ऑल. If given an opportunity, they would not do it. Okay. Right? Someone might like it. Someone might like it. They are doing it because they think people like it. Someone might like it also. But मुझे ये अपनी जगह लगता है कि अगर हमें मुझे जो लोगों ने पहचाना, या आरजे हया को लोगों ने पहचाना, it was not because of internet. I completely agree. It was only because of the frequency which we were on, और हमारी आवाज़ से. मुझे अभी भी लोग बोलते हैं, मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ उनको, या अभी पिछले दिनों में एक फार्मेसी पे गया, वो मुझे कहता है यानी जी आपकी आवाज़ कहीं सुनी है. इट्स लाइक जी हाँ. अच्छा आप हो, ये वो. तो कहीं ना कहीं वॉइस इज़ लाइक, मैं ये कहता हूँ कि वॉइस इज़ लाइक अ परफ्यूम. इट ब्रिंग्स बैक ऑल द मेमोरीज. परफ्यूम हैज़ दिस हैबिट ऑफ, अगर आप परफ्यूम लगाते हैं या अपनी परफ्यूम आप कहीं सूंघते हैं, या जो किसी और ने लगाई होती है, आप उस टाइम में चले जाते हैं अचानक से. अच्छा यार, एवरीथिंग फ्लैशेस in front of your eyes. So that's how your voice is. Right. I didn't actually know, but because then pehle when I was making a list for like who do I want to approach to be a guest on my podcast, I was making a list of entrepreneurs, and there was the owner of Cafe Liberty, Haya Vakil. I did not know it's RJ Haya, because I know RJ Haya from radio. I know you from radio only. But compared to that, I know all other RJs which you just mentioned. I know them from social media only. But then मैं यही कहता हूँ ना कि अगर आप सोशल मीडिया पे इतने स्ट्रांग हैं, तो
you also have to do justice with your radio show also, right? अगर आप सोशल मीडिया पे इतने स्ट्रांग हैं, आपकी सोशल मीडिया पे एक सर्टेन फॉलोइंग है, तो आप अपने रेडियो स्टेशन पे क्या कर रहे हैं? अपने रेडियो स्टेशन पे जो आप शो कर रहे हैं वो आप कैसा कर रहे हैं? या आप इसी फिराक में लगे रहते हैं कि मैं ये शो करके सोशल मीडिया पे जाऊंगा और मैं वहाँ ये बात करूंगा जो मैंने सोशल मीडिया पे की. कंटेंट इतना क्रॉस पॉलिनेट हो रहा है आजकल अनफॉर्चुनेटली कि कहीं ना कहीं लिसनर को पता है कि अगर मैंने उसको सुबह नहीं सुना, मैं शाम को सोशल मीडिया पे देख ही लूंगा. इसमें इन सब चीज़ों में समीन इज डूइंग वेरी गुड. ही कीप्स हिज कंटेंट ओनली फॉर रेडियो. He knows his audience. He knows who all listen to him early in the morning. He is an impact breakfast jock. His voice has a say. He gets things done. अगर कहीं बिजली पानी सड़क का इशू है, so he's the right man to get in touch with. So radio is still relevant. It will never go out. Okay. पहले आप देखो रेडियो आया, हमारे पास रेडियो आया, फिर उसके बाद टेप रिकॉर्डर आए. हाँ. लोगों ने कहा खत्म सा रेडियो स्टिल देयर. फिर टीवी आया, लोगों ने कहा कि क्या मकले में वहाँ कुछ बॉयज टीवी. रेडियो स्टिल देयर. देन योर CD players came in. रेडियो स्टिल देयर. देन पेन ड्राइव केम इन. राइट. रेडियो स्टिल देयर. 2021 में सर्वे हुआ कि इंडिया में what was the source of authentic information regarding COVID? Radio came out to be the number one medium. Wow. So it will never go out. It will never go old. Yes, right now there are so many mediums to consume content. Everyone has her own favorite medium कि वो कहाँ से क्या सुने. लेकिन radio is always there. It will always be there. Radio frequency will never go out. Okay. On that note, thank you so much, Nasir sir, for your very valuable time. बहुत शुक्रिया. I really enjoyed this conversation so much, and I'm sure my colleagues have also enjoyed this conversation. I hope they did. I really wish कि conversation खत्म नहीं होती, but I don't want you to say कि बस यार छोड़ो अब कितना time खराब कर रहे हो मेरा. No, I love it. It's after a long time that I've spoken so much. I can see आप बोर हो रहे हो. नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा. It's if you want to ask me anything you can, but मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अरसे के बाद इतनी बातें की हैं. If you want to ask, you can go ahead. I have time. I won't take much of your time now. So thank you so much for thank you. having me on the show. Thank you so much. शुक्रिया. Did you enjoy it? I did. Thank you so much. Thank you.